Yes, am I audible? Yes, sir. Okay, fine. The screen is visible for you all. Yes, sir. So generally we see what I was discussing is the total inventory cost. Now it will be dependent on the purchasing cost. Purchasing cost means the cost per unit and a cost per unit of the item. That is the purchasing cost. Will depend on the setup cost or ordering cost भी बोलते हैं इसको. Holding cost में capital block. Then again your storing area which is blocked, handling, transportation of materials, everything comes under holding cost, and shortage cost which is the penalty cost. ये चार चीजें हैं. So in essence, if you see, there are four type of models which are there. One is deterministic and constant, that is static with time. जो हम आज मॉडल देखेंगे, today we are discuss the model which we'll discuss is the first type of model, which is the simplest of all models. ठीक है. From your subject point of view में deterministic and constant static constant that is static model with time, it is the, you can say, easiest model but least practical practice में अगर आप देखो तो the requirements will not be so well defined. ठीक है. You can just estimate it, and provided how accurately you estimate, आपका है ना, your model will work that fine. If you estimate wrong, again your model will go every, है ना, the model will not work properly. इसमें क्या होता है, यू अगेन कंप्यूट द मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस वगैरह सारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंप्यूट करते हो, एंड यू सी प्रीवियस प्रोजेक्ट पे क्या रिक्वायरमेंट्स थी, एंड hence you estimated properly. Then you have deterministic means what, something which can be predicted with reasonable degree of accuracy. डिटरमिनिस्टिक एंड वेरिएबल डायनामिक विद टाइम. जैसे भी सीजनल है तो सीजनल वेरिएशन है, जैसे सीमेंट एंड ऑल, you'll not use too much, or rather in monsoon season you'll not work too much on the this slab part or something like that, which is the, you'll work more on the finishing aspects, or rather you will work more on the aspects which will not require direct interference from the rainy season. Probabilistic means which cannot be estimated with reasonable degree of frequency. इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, बट दे आर स्टेशनरी. Stationary over time means throughout the year the requirement is more or less same. Probabilistic and non-stationary over time means there are a lot of peaks and troughs in the requirement of the materials. So ये सर चार टाइप के मॉडल्स होते हैं. फाइन. So again we'll come to the numerical part. So the other day we had started with this, but आप लोगों ने जैसे आपने बताया मुझे, we don't have that much backdrop of EOQ, that's why we discuss this. Fine. Okay. So one important model which is there, है ना, one important model which is there, is this visible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. One important model which is there, that is sensitivity analysis. Fine. Now sensitivity analysis means what? Sensitivity means that, what is sensitivity? Yes, anybody, what is sensitivity? Sir, which will change in change of any other value. नहीं, आप अभी जनरली है ना, you may have often come across some advertise ना, sensitivity of the tooth. क्या होता है sensitivity मतलब? In simple, I am asking this just the dictionary meaning. You forgot about what is written here. ability to sense. Related to, Ability to sense. हाँ, ability to sense. Okay. सर नाजुक हाँ हाँ. नाजुक हो गया सेंसिटिविटी.
मैजिक, नाजुक नाजुक वीक। ओके, नाजुक नाजुक बोल रहे हो, ओके फाइन। हाँ बेसिकली सेंसिटिव मतलब क्या, हम बोलते हैं ना अक्सर दिस इज अ सेंसिटिव पर्सन। सेंसिटिव मतलब क्या, हल्का सा, इवन सर्वे में आप लोगों ने पढ़ेंगे ना, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल, इवन विथ स्लाइट डिफ्लेक्शन, इवन विथ स्लाइट डिफ्लेक्शन देयर इज अ, है ना, मेजर चेंज इन दी लेवल, है ना। जब भी हम बबल का सेंसिटिव बोलते हैं तो स्लाइट भी अगर लेवल का डिफरेंस हो गया और स्लाइट डिफ्लेक्शन हो गया, स्लाइट भी अगर लेवल ट्यूब टिल्ट हो गई तो इट शोज मेजर डिफ्लेक्शन। तो जितना सेंसिटिव बबल होगा उतना एक्यूरेट, है ना, द लेवलिंग होगा। सिमिलरली सेंसिटिविटी मीन्स व्हाट, विथ स्मॉलर, even with small change it shows a large change in the outcome of the particular, you can say particular phenomena. So in our case, in our case, in our case sensitivity में हम क्या बोलेंगे, it is a generic tool, it is a generic tool which helps to determine the effects of variation on the values of dependent variable due to change in the independent variable। मतलब क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके वैल्यूज में चेंज होने के बाद, और अदर हमने एस्टिमेट गलत किए थे, हमने एस्टिमेट गलत किए थे और हम एक एस्टिमेट लेके चल रहे थे, वो एस्टिमेट लेके चलने की वजह से बिकॉज ऑफ वी अज्यूमिंग समथिंग एंड बिकॉज ऑफ वी स्टिकिंग टू दैट एस्टिमेट, इफ देर इज चेंज इन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, है ना, सो सिर्फ वो गलत एस्टिमेट करने की वजह से हमको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। इफ इन द फर्स्ट प्लेस वी आर एस्टिमेटेड करेक्टली एंड देन, है ना, बेस्ड ऑन दैट वी हैव ऑर्डर्ड समथिंग, if we are estimated it wrongly, so what will be that wrong order quantity and correct order quantity में what will be the price difference, है ना, what will be the loss of profit in short। because देखो एक चीज होती है economic order quantity, economic order quantity means what, it is the most optimum level of ordering which is to be maintained, so that, है ना, उतना अगर आप हर ऑर्डर में मंगाओ उतना क्वांटिटी, इफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज ordered every time you order, what will happen is you will arrive at the most economic order quantity, you will arrive at the most economic का मतलब क्या है, irrespective of the batch size the quantity which you order based on the, है ना, तो based on the phenomena, based on the phenomena of your, जो हमने चार कॉस्ट डिस्कस किए थे ना, यूनिट कॉस्ट, देन इन्वेंट्री इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, है ना, तो ये जो चार कॉस्ट है बेस्ड ऑन दोज कॉस्ट द ईओक्यू इज डिटरमाइंड। ईओक्यू जनरली इफ यू वांट टू फाइंड द ईक्यू का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो इट इज नथिंग बट ईओक्यू इज गिवन बाय 2 एस सी ओ सी यू इंटू आई, और अंडर रूट में होता है एस इज दी एनुअल इन्वेंट्री विच इज रिक्वायर्ड, एनुअली कितना आपको रिक्वायरमेंट, दिस इज द फॉर्मूला विच इज डिराइव्ड। ऑफ कोर्स विल नॉट गो टू मच इनटू डेरिवेशन बिकॉज आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं है, but in CM you had because of this lockdown and all, no, you may not have studied that in detail, but CM में EOQ construction management में EOQ का आपको derivation and all है based on the holding cost and all। I'll just directly give you the formula because it is easy to understand, no rocket science in this। This is what 2SCO, S is what annual inventory which is required, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है डिनोमिनेटर में क्या है जो समझो फिर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। 2 into S is the annual inventory which is required, CO is the ordering cost, ordering cost is fixed, मतलब आप चाहे जितने बार ऑर्डर करो एक बार ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट होता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट यू नीड टू इनकर, ड्यूटी ड्यू बिलिंग साइकिल है जो भी है, वॉट एवर इज द अकाउंट्स एंड ऑल, वॉट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ यू ऑर्डर 1 टाइम और 10 टाइम और 100 टाइम्स, जितने बार भी मंगाओ दिस ऑर्डर कॉस्ट इज फिक्स्ड। CU इज द पर यूनिट कॉस्ट, CU क्या है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर आइटम, ये क्या है, S क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स एनुअली, ठीक है। CU इज द कॉस्ट पर यूनिट आइटम, I is the inventory of the it is the average annual inventory, average annual inventory मतलब उसका जो average annual inventory का cost है, that cost it is there which is required for which is taken as a percentage of the average annual inventory, average handling cost वगैरह जो है it is taken as the
Inventory carrying cost is it is the inventory carrying cost. Inventory carrying cost is taken as the percentage of the average annual inventory. बात समझ रहे हो? It is 0.2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? It is 20%. ठीक है, जो भी आपका एवरेज एनुअल इन्वेंट्री है, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उसको हैंडलिंग का, स्टोरिंग का, स्टॉकिंग का, some servicing will be required ना for that inventory which is when the inventory is there on the site. तो जितना ज्यादा इन्वेंट्री आपके साइट पे होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा. जनरली दिस कॉस्ट इज रिटर्न इन परसेंटेज. ये फिगर क्या होता है? ऑलवेज परसेंटेज, और अदर परसेंटेज की जगह वी राइट हियर इन, बिकॉज परसेंट मीन्स और पर 100. so 20% होगा तो वी राइट हियर 0.2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? This 0.2 indicates what the inventory carrying cost is 20% of the average annual inventory. 20% means what? जो मेरा समझो अभी एवरेज इन्वेंट्री मेरा साइट पे सपोज इट इज 10 लाख बैग्स है ना, तो 10 लाख बैग्स का 20% दिस विल बी देयर. सो वी डोंट राइट हियर 2 लाख और we don't write figures here, we just write 0.2 here because the formula is derived in this manner only. So EOQ is simply it is estimated. अगर मुझे we'll see that EOQ problem also. Right now you just see the sensitivity analysis का problem देखो, आपको समझ में आ जाएगा. So just see तो EOQ is given by 2SCO divided by C into I. ये पूरा अंडर रूट में जाता है. So for EOQ देखो, एक तो हो गया EOQ. दिस इज बेस्ड ऑन दियर एस्टिमेट. हमने कुछ एस्टिमेट किया है, बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट द EOQ इज डिटरमाइंड. फाइन. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी एस्टिमेटेड इनकरेक्टली. एस्टिमेट इनकरेक्टली मतलब क्या? हमको करना है, एनुअल रिक्वायरमेंट वाज 90,000 बैग्स, वी एस्टिमेटेड 1 लाख बैग्स सीमेंट बैग्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट. समझ, if you want to order something in case of say sand, so this will change है ना, according to the unit of sand. So CO is what? Again, ordering cost. Ordering cost, it is a fixed amount. So if you thought the ordering cost was rupees 2 lakhs per order, let's change to rupees 5 lakhs per order. So there is a change. So we need to, because of our improper estimate ना. सीमेंट बैग्स का हमने समझो प्रॉब्लम लिया, और सीमेंट बैग्स का हमने कॉस्ट पकड़ा था 370 रुपीज पर केजी, और अदर 370 रुपीज पर बैग. बट है ना, लॉकडाउन लॉकडाउन हो गया, जो भी है, इट इंक्रीज टू 400 और 450 और 500 है ना. तो दिस हैज चेंज, एंड हमने गलत एस्टिमेट करने की वजह से हमारा जो EOQ रॉन्ग आया था. नाउ फॉर because of that computing of wrong EOQ, we have to shed some extra money, and that extra money is it can be determined by this sensitive analysis. Making sense? समझ रहे हैं या बाउंसर गया पूरा? Yes. Yes, sir. Okay. I'll repeat once more. Khalid has understood. Rest all are, I think, still confused. I'll repeat once more so that we will. Okay. Sensitivity मतलब क्या? Sensitivity means slight variation in a particular है ना यूनिट और क्वांटिटी. अभी ये 4 चीजें हैं इसमें. EOQ में 4 things are there. Slight variation in any of these will cause a major variation in the फाइनल है ना. फाइनल जो हमारा EOQ है उसमें ज्यादा वेरिएशन होगा. तो दिस वेरिएशन इज द कंप्यूटिंग दिस वेरिएशन इज नोन एज सेंसिटिव एनालिसिस. सेंसिटिव एनालिसिस का एक कोई फिक्स मॉडल नहीं है, बट फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वन मॉडल इज डेवलप वेरिन. ये देखो, ये 2 चीज है. there are something which are there in the EOQ के formula. There are something which are there in the numerator. That is what? Annual cost. Annual cost जितना ज्यादा, सॉरी, annual requirement of item जितना ज्यादा होगा है ना, उतना हमारा EOQ क्या होगा? ज्यादा होगा ना. EOQ will increase. The annual requirement is more. अगर हमको बहुत ज्यादा आइटम्स चाहिए तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड इंक्रीज ना. सो दिस S is pulling this EOQ upwards. CO भी अगर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अगर ज्यादा है, तो हम कम से कम ऑर्डर प्लेस करेंगे ना. विल प्लेस एज लेस एज ऑर्डर पॉसिबल. सो योर पर यूनिट, एक ऑर्डर में पर यूनिट आइटम्स विल बी इंक्रीजिंग. समझ रहे हो? योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी लेस. नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी लेस. सो समझो हमको 1 लाख सीमेंट बैग्स चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इफ देयर आर 10 ऑर्डर्स, तो पर ऑर्डर देयर विल बी 10,000 सीमेंट बैग्स. इफ देयर आर 20 ऑर्डर्स, तो पर ऑर्डर देयर विल बी 5,000 सीमेंट बैग्स. So this CO determines कि CO if it is more, so your EOQ will also go up. यानी per batch आपको जो ऑर्डर करना है अब जाएगा. तो S and CO what they are doing, they are pulling this EOQ in the
ये पुल कर रहे हैं ईओक्यू के ऊपर, यानी दे आर इंक्रीजिंग द ईओक्यू अमाउंट। whereas जो सीयू है, सीयू इज कॉस्ट पर यूनिट, यानी अगर हमारा कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स अगर कम हो जाएगा, है ना, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल इंक्रीज। ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस द, बिकॉज पर ऑर्डर में हमको ज्यादा पैसा शेड करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सिंपल मैथमेटिक्स इट इज। cost per unit is more, so our economic order quantity it will be pulled down, because we will need to spend more ना, अगर ये per unit अगर order ज़्यादा है, you need to spend more, so EOQ will come down, isn't it? Inventory handling cost, inventory handling cost if it is more, so again EOQ will be pulled down ना, यानी हमको अगर जगह साइड पे ज्यादा जगह लग रही है, वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन दी हैंडलिंग, स्टोरेज, स्टैकिंग, है ना, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, सो दिस ईओक्यू विल बी पुल्ड डाउन है। तो ये फॉर्मूला में दो चीज जो न्यूमरेटर में है दे आर पुलिंग द ईओक्यू अप, दो चीज जो डिनोमिनेटर में है दे आर पुलिंग द ईओक्यू डाउन। सो दिस, है ना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल वेर इन, है ना, दिस इकोनॉमिक, अगर हम हमारे अगर हाथ में होते तो हम क्या करते थे, पूरा का पूरा ईओक्यू यानी पूरा का पूरा बैच एक साथ मंगा लेते थे। But again, this, है ना, then will not have space on this side, will not have that adequate money on this side. So these two parameters in the denominator are very much important for deciding the EOQ. Of course, ये चारों चीज है ना, they are, these two things are inversely proportional to these two things, or rather they are contradictory, है ना. So EOQ will be depend on these four things. तो परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू वेरिएशन, इफ यू वांट टू फाइंड द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी में परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू वेरिएशन अगर करना है तो लैम्बडा लैम्बडा अल्फा बीटा प्लस गैमा इनटू डेल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट लैम्बडा क्या अल्फा बीटा गैमा डेल माइनस 1 into 100, where alpha is for the variation in S, that is annual requirement, beta is the variation in CO, gamma is the variation in Cu, that is in the denominator, and del is the variation in I. If you see alpha beta are clubbed together plus ये दोनों है, this is variation मतलब it will be computed in percentage, ठीक है. So how it is computed, how this alpha beta gamma del are computed, I'll tell you. So everybody is comfortable till now, ये समझ में आ रहा है, बिकॉज इसके आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है. Yes, sir, understood. Yes, sir. Okay, good. So these अल्फा बीटा सिंपल थिंग है, कभी एग्जाम में भूल जाओ फॉर्मूला तो याद रखो. अल्फा बीटा क्या है, न्यूमरिकल ईओक्यू के फॉर्मूला में दे आर इन द न्यूमरेटर ऑफ द ईओक्यू फॉर्मूला, so they correspond to S and CO, whereas gamma delta they are in the denominator, so they correspond to CO into I, है ना. तो अल्फा बीटा प्लस गैमा डेल्टा, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी मोर देन 1, बिकॉज देखो आप चाहे ओवर एस्टिमेट करो या अंडर एस्टिमेट करो, दोनों भी गलत है. देखो एक होता है एग्जैक्ट एस्टिमेट विच इज बेस्ड ऑन योर ईओक्यू, आप एग्जैक्ट एस्टिमेट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि योर क्वांटिटी विल बी इकोनॉमिकल. इफ यू अंडर एस्टिमेट देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ यू ओवर एस्टिमेट देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना. ज्यादा एस्टिमेट करोगे तो भी गलत है, कम एस्टिमेट करोगे तो भी गलत है, तो इट शुड बी प्रॉपरली एस्टिमेटेड. तो दिस फॉर्मूला दिस वैल्यूज विल ऑलवेज बी मोर देन 1, इसलिए -1 है. तो देयर विल बी सम परसेंटेज विल गेट, ऑलवेज देयर विल बी इंक्रीज इन कॉस्ट ओनली ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है. इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, इट विल बी अ वेरी स्मॉल आंसर, 0.01%, 0.04%, है ना. इसका 0.01 भी अगर आपका करोड़ में अगर कॉस्ट है तो 0.01 इज ऑल्सो विल बी इन सम लैक्स, बात समझ लो. तो this is just due to your improper estimation, this error is just due to the, इन क्वांटिटी बढ़ने की वजह से एरर, ये कॉस्ट नहीं है, दिस इज द एरर विच इज एसोसिएटेड विद योर इम्प्रॉपर गेस वर्क और इम्प्रॉपर एस्टिमेशन, ठीक है. तो ईओक्यू इज √2SCO divided by CUI. So for over estimate there is small correction for the under estimate formula. Over estimation के लिए वेरिएशन क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड अमाउंट, estimated minus actual minus estimated upon estimated plus 1. आपको समझो एस्टिमेटेड for every this alpha beta gamma del every of these variable, this formula will work, इसको फॉर्मूला में से एक होगा. तो E is the, अगर आपने ओवर एस्टिमेट किया, सपोज आपको सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड ऑन द साइट इज ओनली से 1 लाख,
लेकिन आपने 1,10,000 एस्टिमेट किए, तो यू आर ओवर एस्टिमेटेड. सो इन दैट केस ओवर एस्टिमेशन में क्या होगा, 1,10,000 माइनस 1,00,000 डिवाइड बाई 1,10,000 प्लस 1. ठीक है. सो वॉट एवर वैल्यू विल गेट हियर प्लस 1 विल डू. अंडर एस्टिमेशन में क्या करते हैं, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड डिवाइड बाई एस्टिमेटेड. ठीक है. और यहाँ पे 1 माइनस होता है, इट इज 1 माइनस, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला, इज 1 माइनस एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड अपॉन एस्टिमेटेड. ठीक है. यहाँ पे आप जब आपके नोट्स में इधर ऐड कर दो, इट इज सॉल्व्ड हियर रॉन्गली, इट इज 1 माइनस. ठीक है, कर लोगे ये. हैव यू नोटेड डाउन? प्लीज नोट इट डाउन. प्लीज नोट इट डाउन. हियर इट इज प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ए माइनस. तो यहाँ पे रॉन्ग सॉल्व किया गया है, दिस इज नॉट, दिस फॉर्मूला इज नॉट राइट हियर. एंड अंडर एस्टिमेशन का, ओवर एस्टिमेशन का इट इज करेक्ट, अंडर एस्टिमेशन का 1 माइनस करोगे आप. ठीक है. It will always be less than 1 under estimation, and over estimation will always be more than 1. Fine. समझा क्या करेक्शन करना है? 1 माइनस ए माइनस ई अपॉन ई. ए इज द एक्चुअल अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड. अंडर एस्टिमेट किए ना आपको रिक्वायरमेंट था 1,00,000 बैग्स का, आपने एस्टिमेट 90,000 की है, तो 1,00,000 माइनस 90,000 डिवाइड बाई 90,000, दिस वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1. फाइन. तो एक्चुअल क्वांटिटी एस्टिमेटेड, ये सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. नाउ विल कम टू द न्यूमेरिकल. ठीक है, विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. Yes, sir. So just see, for a particular project, it was estimated that 1,00,000 cement bags would be required. Okay, for a particular project, it was estimated that 1,00,000 cement bags would be required. The ordering cost was expected to be rupees 2,000 per order. Okay, so this is what 1,00,000 जो दिया, this is capital S. This is what CO, C suffix O. The unit cost of cement bags was estimated at rupees 320 per bag. This is CU. Okay, C suffix U. Inventory carrying cost was expected to be 20% of the average annual inventory. And inventory को जो handling का, storing का, stacking का, transportation का, and उसका protection का जो भी require, जो भी cost है, जो भी inventory site पे थी, उस site का 20% cost is assumed for this. Fine. So this was there. This was the estimated part. अभी क्या हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गया. ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इट वाज फाउंड दैट द सीमेंट बैग्स एक्चुअली रिक्वायर्ड वर 1,10,000. ठीक है. फर्स्ट कितना एस्टिमेटेड था, एस्टिमेटेड ई कैपिटल ई वाज दिस, नाउ ए इज दिस. द ऑर्डरिंग कॉस्ट रिमेन द सेम, सो देयर इज नो चेंज इन द ऑर्डरिंग कॉस्ट, whereas the unit cost of cement bags reduced to rupees 305 per bag. तो सीमेंट बैग्स का कॉस्ट इनफैक्ट कम हो गया इधर. द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज टू 22%. ठीक है. फाइंड आउट हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज. ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज ही होगा. इन कॉस्ट वुड बी इनकर्ड जस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर एस्टिमेशन. आई जस्ट शो यू वन न्यूमेरिकल. Okay, then I'll change the values and you need to solve. Fine. I'll just show you one this numerical. So given data, capital S, that is annual requirement is 1,00,000. CO rupees 2,000. CO rupees 320. This is what based on actual estimates. The EOQ is estimated. So EOQ जो निकाला गया था 2,500 was based on actual estimate. Rather estimate. It was not based on actual quantity. It was based on estimate. EOQ was computed based on estimate, and when the EOQ will be computed based on actual values, there will be a variation, of course. ठीक है, कुछ वेरिएशन होगा. So वो वेरिएशन ड्यू टू इम्प्रॉपर एस्टिमेशन, वो वेरिएशन के वजह से हमको कितना नुकसान होगा, दैट इन शॉर्ट दैट नुकसान वी आर कंप्यूटिंग. मेक सेंस? So EOQ is what? It is nothing but under root 2S into CO divided by CU into I. Of course, simple values है. Most of students what mistake they do,
इसमें वो मिस्टेक कर लेते, पूरा यो क्यों गलत हो जाता है. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20%, सो यू नीड नॉट टेक 20 हियर, यू नीड टू टेक 0.2. इधर 20 ले लोगे पूरा आंसर चेंज हो जाएगा. फाइन. तो मेक श्योर 20% भले उधर लिखा है, but you should not take 20, you should take 0.2, because percent means what? Percent is nothing but 20 divided by 100. Cent मतलब 100. ठीक है. So percent means 20 divided by 100, so it is 0.2. So take here 0.2 only. So simple calculation से हमको 2500 आता है. This is based on estimate. Actual के हिसाब से हम करेंगे. You just work out for actual, you will get to know that this will be different. If this is same, so there will be no variation. अगर ये same ही आता है और cost हमारा same ही होगा, because we are ordering the same, which is the most economical. Fine. Now because of variation, alpha and gamma, alpha and del are underestimated. Alpha क्या है? Alpha is corresponding to this actual. Alpha is corresponding to annual number of units which is there, है ना. So this is alpha is underestimate. Underestimate मतलब क्या? 1,10,000 चाहिए था, मंगाया कितना? एस्टिमेट कितना किया? 1,00,000. तो जो बाकी का 10,000 बचा, जो हमने ईओक्यू में नहीं डाला है ना, उसको हमको क्या करना पड़ा? अडॉक बेसिस में मंगाना पड़ा हमको. मतलब है ना, यू आर नॉट प्लान फॉर दिस, not planned for this, so you have to spend extra money for that, or whatever is your process was stopped, or whatever delays were there in the project, they were taken attributed to your improper estimate. This is one thing. So this is underestimated. 2000 per order था, ordering cost remained the same, so there will be no change. ठीक है. Unit cost was estimated 3000, 320, it became 305. So this is overestimated. Overestimated हमने ज़्यादा estimate किए. So this is also wrong. Wrong in the sense we are estimating, we are just predicting. But if you estimate it improperly, there will be error. So what our purpose is to, based on the previous historical data and future projects, we will make sure that our estimates are proper. Inventory carrying cost was expected to be 20%, so 0.2 expected था, 0.22 हो गया, 22% increase होगा. So again this is also underestimated. So two things are underestimated. This 1 lakh and this 20 are underestimated. यानी आपका अल्फा और डेल are underestimated. Ordering cost remains the same, and इसका जो बीटा है it will be 1 only. ठीक है. You work on by any formula, it will come out to be 1 only. And unit cost of cement bag was estimated at 320 per bag. So 320 per bag, again this is overestimated. So what we'll do, we'll use the overestimate wala formula. So just see, alpha and beta, alpha and del are underestimated, beta is exactly estimated, so beta is going to be 1, gamma is overestimated. So alpha क्या होगा? Actual minus estimated upon estimated. So plus 1 करोगे इधर. Actual, are you understanding? This is wrongly calculated here. Alpha भी will what? Alpha is what? अगर हमने अंडर एस्टिमेट किया है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर एस्टिमेट करना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा. फाइन. तो 1 माइनस एक्चुअल माइनस, तो व्हाट विल डू? 1 माइनस दिस विल डू. समझ रहे हो? तो 1 माइनस व्हाट विल डू? 1 माइनस ए माइनस ए अपॉन ई. सो दिस 0.1, दैट मींस 1 माइनस क्या होगा? 0.9 हो जाएगा. Are you understanding this? This will become 0.9. Beta is 1 because you work from any either of the formula. Actual and estimate are same, so this will become 0. So 1 minus करो या 1 plus करो, same ही आएगा ना. Either use overestimate formula. This is 0, this will be 1. ये 1 minus 0 करोगे तो भी 1 ही आएगा. So this is 1 only. Fine. Gamma is what? Gamma is overestimated. So plus 1 आएगा. So 1.0625. समझ रहे हो कैसा है ये? And likewise it is del. So del is also 1 minus, so it is also 0.9. बात समझ रहे हो? एरर कहाँ पे है समझा ना? फॉर्मूला में एरर है. दिस इज 1 minus, this also 1 minus. 0.9. So simply you need to put in the formula, you'll get the answer. Okay. So answer which is computed here, it is wrong. It will be changed. Now what you do? ये जो फॉर्मूला है इसका करेक्ट आंसर, ये जो प्रॉब्लम है इसका करेक्ट आंसर मुझे बताओ. सर कौन कौन सी वैल्यू मतलब चेंज करना पड़ेगा? एक अल्फा की और कौन सी? तो बाबा अल्फा की वैल्यू नहीं चेंज करना है. अल्फा की वैल्यू वगैरह सेम है, फॉर्मूला गलत है. ठीक है. अच्छा आपको, इफ यू वांट मी टू गिव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल,
First, what you do now? First, you solve this. First, you solve this. First, you solve this. Then I'll give you another numerical. पहले इसका सही आंसर तो बताओ. अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं करना. अल्फा की वैल्यू वही लो अभी फिलहाल के लिए. Then I'll give you a different problem also. इसका प्रॉब्लम देता हूँ मैं आपको. यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम देता हूँ. पहले ये तो सॉल्व करो. इसको सिर्फ फॉर्मूला में चेंज करो. फॉर अंडर एस्टिमेट क्या है? अंडर एस्टिमेट सिर्फ एक ये है ना, दो चीज अंडर एस्टिमेटेड है. अल्फा इज अंडर एस्टिमेटेड, डेल इज अंडर एस्टिमेटेड. तो वैल्यूज विल बी सेम. वैल्यूज एक्चुअल एस्टिमेट की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ वन माइनस करके करो. यानी अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी. बराबर, अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ए एंड ई विल बी सेम. बराबर. तो चेंज द अल्फा वैल्यू, चेंज द डेल वैल्यू. फाइन, करो जल्दी. सर डेल में क्या करना रहेगा? प्लीज रिपीट सर. वन माइनस ए है ना, फॉर्मूला इज वन माइनस ए माइनस ए. फॉर्मूला बताओ क्या आपको? सर जरा ऊपर करना ना, क्वेश्चन वो देखने के लिए. क्वेश्चन लिखना है. हाँ सर. दिस इज वन माइनस. क्वेश्चन देखो पहले, फिर बताओ. दिस इज देयर ऑलरेडी. आई हैव सप्लाइड यू दिस नोट्स. ठीक है. So what you will change is, you will change here alpha and del की वैल्यू चेंज होगी. फाइन. सर अल्फा में वन माइनस होगा ना, अल्फा विल बी और डेल में भी सेम होगा. वन माइनस. This will become 0.9. This will also become 0.9. ये वैल्यू मुझे बताओ कितना है. हाँ बोलो. Sir, answer is 5.86.
ये मुझे थोड़ा ये बताते तो भी अच्छा हो जाता था। 5.86% ना? यस सर। ये वैल्यू बता देते तो अच्छा हो जाता था। इफ यू हैव सॉल्व नहीं किया तो छोड़ो। 5.86 है ना? अच्छा हो गया 1.586 होगा। ठीक है, नो नीड। हेलो सर, दैट वैल्यू इज 1.06। कैसा 586 होगा ना? 1.586 5.86 आया ना? हम्म। 056 होगा, 1.0586 होगा। यस सर। ठीक है। सर सो हाँ बोलो। सर बीटा को एग्जैक्टली एस्टिमेटेड ऐसा अज्यूम किया इसलिए इज इक्वल टू 1 हुआ ना वो। यू कैन सॉल्व एनी दिस ना। ओके। देखो इवन इफ यू एनी फॉर्मूला अगर आप ये लो, आप सपोज इसको इसमें भी डालते हो, ओवर एस्टिमेट में डालते हो, सो अगेन एस्टिमेट एंड एक्चुअल आर सेम, दिस विल कम 0, इट विल हम्म। कम आउट 1। ठीक है, इसमें भी डालते हो तो दिस इज both are same ना, एक्चुअल एस्टिमेट आर सेम, इट कम 0, तो हाँ। 1 minus 0 by any formula it should have the same value, isn't it? ओके सर। Directly you can take one, you need not solve there. So I guess this is right and it is making sense also. पहले बहुत कम आंसर है, 0.04 चाहिए था, 5.86% just due to improper estimate. Now what you can do ना, I'll share with you a problem on WhatsApp, you can solve it. Tomorrow what we'll do, tomorrow we'll take an extended session, 3-4 घंटे का हम सेशन ले लेंगे, दो न्यूमेरिकल, बड़े न्यूमेरिकल जब को सॉल्व करने, तो that those numericals will solve, right? So this numerical you expect for say जो 2 मार्क के एमसीक्यूज है उसमें भी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज नथिंग दैट मच है ना, इतना कुछ उसमें है नहीं, so you can expect this in MCQs of 2 marks. बड़े जो न्यूमेरिकल्स है यू प्रैक्टिस देम वेल, ठीक है? Sir, I have one doubt, sir. यस प्लीज। Sir, what we should prepare for the lab one Viva, sir? लैब वन वाइवा, It is on whatever 17. whatever is there in the syllabus na, everything should be prepared, because look, I will make a Google Classroom there and I'll add, or rather I'll tell you to submit through, because अभी physically आना तो possible नहीं है, whatever you have done ना, उसमें दो चीज रह गई है, 2 site visits you need to do, ठीक है? सर तो अभी लेकिन कोविड के इसमें अलाउड हाँ, नहीं कर रहे सर, हमारे सुनो यहाँ ना, तो 144 सेक्शन है तो। मुझसे सुनो बात, you do a virtual site visit on YouTube, ठीक है? Go to YouTube, any site you select, you are free to choose any site, you observe what work is there, ठीक है? If not, I'll provide you some site photos उस प्रोजेक्ट के बारे में। Site visit physically you cannot visit, I can understand that, but at least some sort of report you need to prepare ना, because it is requirement of your, तो वर्चुअल साइट विजिट करो, यूट्यूब पे करो, या डॉक्यूमेंट्री होती है ना, नेट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज होती है, इवन आई हैव सम डॉक्यूमेंट्रीज आई शेयर विद यू कैन, ठीक है? चलो इंडिविजुअल रिपोर्ट अलग होना चाहिए। रिपोर्ट अलग होना चाहिए, अलग ही होगा ना, अलग अलग, अलग इन द सेंस, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है रिपोर्ट का, व्हाट इज द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, है ना, बेसिक जो है वो सब वीडियो देख के समझ के आप करोगे। तो आई विल शेयर सम साइट विजिट्स विथ यू, बट ठीक, अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना, आपको कहाँ सर कौन से अगर साइट। हमें एक सैंपल मिल जाएगा कि रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए तो थोड़ा हेल्प हो जाती थी सर। रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, आई सी, बट अगेन मेरे पास भी इधर नहीं होगा, आई सी समबडी हैज इन दिस ना ड्राइव में वगैरह अगर है तो मैं आई जस्ट चेक, आई सेंड यू फॉर्मेट, नो वरीज। तो सर लैब वन में एक ये साइट विजिट का रिपोर्ट रहेगा सर, और क्या एक रहेगा मतलब जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म किए उसके बारे में भी रहेगा? हाँ लेगा, मैं बता दूँ जस्ट।
तो लैब 1 में ये सारी चीज चाहिए। वर्किंग आउट टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टू पर्टिकुलर टाइम ऑफ वर्क, ठीक है। ये तो एक आपको एक डमी केस लेना है, डमी केस लेना है जिसमें आपको वर्किंग इक्विपमेंट्स वर्किंग इन ग्रुप का कॉस्ट निकालना है। सो इसका भी मैं आपको सैंपल भेजता हूँ, ठीक है। दिस सैंपल आई सेड यू नीड टू टेक फॉर योर प्रोजेक्ट। ये भी आपको एक अज्यूम करना है, ये दोनों का मैं सैंपल भेजता हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करें। दिस आई टोल्ड यू टू डू टाइम मोशन स्टडी का न्यूमेरिकल, ठीक है। साइट विजिट्स, 2 साइट विजिट्स का रिपोर्ट लगाना है। ये जो लैब में से अपने अपन ने एनवायरनमेंट का किए हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव डन, फाइन। Rest all it is not possible to do physically, but again you have to see through virtual labs जो होते हैं ना आईआईटी बॉम्बे के वगैरह, वहां से आपको देख के लिखना पड़ेगा। फील्ड एक्सरसाइज ऑन ईओक्यू, टुमारो विल सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दिस, ठीक है। एंड आपके रोल नंबर के हिसाब से आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑन दिस, सो दिस यू कैन सॉल्व। इट रिक्वायर 2 hours जस्ट फॉर सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल, सो दैट इज, ठीक है। असाइनमेंट्स ऑन विच सब्जेक्ट, तो ये सब आपको लैब में रिक्वायरमेंट है, फाइन। पहले 2 का सर टेंशन मत। वन रिपोर्ट 1 असाइनमेंट है सर, और ये लैब के रिलेटेड क्या लिखना है सर? ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लेबोरेटरी। लोग सिंपल है, ये दोनों का मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस करके करो, ठीक है। ये दो, पहला असाइनमेंट विल बी दिस, सेकंड असाइनमेंट विल बी दिस, थर्ड असाइनमेंट विल बी दिस, ठीक है। wherein you have to go to the site and you need to report the timings and all. This we already discussed ना, third assignment we already discussed। फोर्थ का साइट विजिट आपको वर्चुअल साइट विजिट करना है, यूट्यूब पे करो या जैसे भी करो, उसका रिपोर्ट लिखो। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको दे देता हूँ कैसा होना चाहिए साइट विजिट, ठीक है। सो फॉर इंडिविजुअल साइट यू नीड टू राइट। टेस्ट के बारे में हमने क्या किया, टेस्ट का हमने वी हैव डन द एनवायरनमेंट लेबोरेटरी टेस्ट, ये हमने कंप्लीट किया है, बराबर। इसका रिपोर्ट रिजल्ट एंड ऑल आपके पास है ही। अब एसबीआई का सर ने जो मैंने आपको वीडियो भेजा था वो देखो, एंड जो अपन ने इधर जो किए थे ना सस्पेंडेड डीएसएस का जो प्रैक्टिकल किया था, उसका रिजल्ट्स आपके पास है, वो लिखो। दो प्रैक्टिकल्स। फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी यू हैव टू डू वर्चुअल any two any two practicals you see virtually, and you should write the reports on based on those two। हर एक का लिखो, देखो कैसा है। मॉड्यूल इंटरव्यू, फील्ड टेस्ट विच आर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट सेट एंड स्टूडेंट्स हैव, तो ये सारे चीजों का आपको रिपोर्ट है ना। आपको टू टेस्ट आपका टू टेस्ट बोला तो ये लिखना है, ठीक है। फील्ड एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया, फील्ड एक्सरसाइज ऑन ईओके एंड ऑल, टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल। इसमें आई विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल हियर, एंड बेस्ड ऑन दैट न्यूमेरिकल आपको आपके रोल नंबर के हिसाब से आई गिव यू सम असाइनमेंट ऑन दैट एंड यू नीड टू सॉल्व, फाइन। और बाकी हर एक टीचर आपको एक एक सब्जेक्ट देगा। पी एंड एस और ओ आर में आई विल नॉट गिव सब बिकॉज टाइम कंस्टेंट भी है। तो पी एंड एस में ऑलरेडी यू आर डूइंग दिस, इट इज रिलेटेड टू पी एंड एस, फाइन। एंड ओ आर में आपको आई विल नॉट गिव इंडिविजुअल असाइनमेंट। तो बाकी के दो जो सब्जेक्ट है आपके, 3 सब्जेक्ट है, आर 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 है, सी सी एम है और एम पी पी सी है, उनमें से एक एक असाइनमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा। 3 असाइनमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। इसमें ग्रेडिंग सर विल बी गिविंग, फाइन। सर एक क्वेरी था बोलो ना। सर, ये लैब प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स जो है लैब 1 के, हाँ तो सर वो टाइप मटेरियल चलेगा सर? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। कि सर अभी नेक्स्ट वीक यूटी भी है सर, नो प्रॉब्लम, टाइप प्रेजेंटेशन चलेगा। भी है सर लैब 2 का। यस आई कैन अंडरस्टैंड, टाइप मटेरियल चलेगा, ओके ठीक सर, है। थैंक यू। देखो यू हैव टू फेस द एग्जाम्स, फाइन। so what यस सर। best you can prepare, that is in your hands। there is no hard and fast rule कि आपको हाथ से ही लिखना है, and I am not a fan of that thing ना कि सर आपको वो हाथ से ज्यादा ड्रॉ टाइम कर। कंज्यूम करेगा, टाइम नहीं है that I इससे। can understand। whatever you have written it should be well aware of whatever is there in the material, सिलेबस। ठीक है। ऐसा ओके नहीं सर। होना चाहिए आपने कुछ प्रेजेंट चीज प्रेजेंट करे हो एंड यू डोंट नो व्हाट इज रिटन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Fine, then is it clear? All of you have the syllabus with you.
You just look on the syllabus, you just visit the syllabus and देखो क्या क्या किस चीज में pending है, and based on that है ना you need to complete it. And MIS और इसके लिए भी आप देखो बराबर से MIS and कौन सा है वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए Value engineering. हाँ हाउ आर यू मतलब कहाँ से नोट्स एंड ऑल क्या कर रहे हो बराबर से देख लो बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम ना. सर वैल्यू का तो बुक मिल गया है, हार्ड कॉपी हमने परचेज किया है, अच्छा और हाँ एमआईएस का भी यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब रेफरेंस बुक है हमारे पास, और इट्स काइंड ऑफ नोट्स ओनली, उसमें से ही पढ़ रहे हैं हम लोग. ओके गुड गुड ठीक है. Majid bhai, agar if you can share online soft copy, then it will be helpful for all of us. किस चीज़ की सॉफ्ट कॉपी चाहिए? सर यही नोट्स वगैरह की सर, क्योंकि अभी नोट्स वगैरह हाँ भी तो प्रॉपर. नोट्स शेयर करो ना, यू शुड ऑलवेज शेयरिंग इज केयरिंग ना, तो शेयर करो सारे नोट्स आपस में. यू शुड ऑलवेज शेयर सच नोट्स ना, किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है तो यू शुड शेयर. PNS के लिए एज आई टोल्ड देयर इज नो नीड फॉर एनी रेफरेंस बुक बिकॉज रेफरेंस बुक का प्रॉब्लम क्या है, ऑफ कोर्स इट इज गुड बट अब कितना टाइम नहीं है ना आपके पास, हार्डली यू हैव 2 weeks और रेफरेंस बुक कहाँ पढ़ते बैठोगे. तो माई नोट्स आर सफिशिएंट, देयर आर सर्टेन करेक्शंस बिकॉज ये नोट्स मेरी 10 साल पुरानी नोट्स है तो ऑफ कोर्स इसमें करेक्शंस है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई हैड रिटन दोज नोट्स. तो स्टूडेंट की मेंटेलिटी आप यू नो वी मेक मिस्टेक्स, तो वो सारा मिस्टेक्स तो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स आई विल टेल यू, जैसे आज के इसमें एक मिस्टेक था है रेक्टिफाइड है. सर सिमिलरली स्टेप सही है उसमें, सिर्फ कैलकुलेशन एरर से बीच बीच में. हाँ कैलकुलेशन एरर रहेंगे कहीं जहाँ जहाँ मिस्टेक्स आई हैव टोल्ड 1 or 2 मिस्टेक्स अगेन आई हैव टोल्ड ना, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ लेकिन मैंने क्लास में बताया था एक बार सर. ठीक है तो आज का एरर नोट डाउन कर लो. फाइन देन. तो वन मोर यू व्हाट यू डू ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास हो तो उसमें से सॉल्व करो एंड यू जस्ट सॉल्व इट. सॉल्व अब सॉल्व जब तक नहीं करोगे यू नॉट गेट टू कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज इसमें सॉल्व मैथमेटिकल सब्जेक्ट है एंड सॉल्विंग विल ओनली हेल्प यू आउट. सर एक बार यस ये उमेश क्वेश्चन दो ना, क्वेश्चन क्या करो ये बताओ. क्वेश्चन दिखा ना अभी जो कर रहे थे. हाँ. ओके 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 सर, अभी स्क्रॉल डाउन करो. ओके ओके हाँ. ओके देन यू सॉल्व. आई विल आल्सो मेरे पास अगर क्वेश्चन है सर इसके क्वेश्चन आएंगे सॉल्यूशन डेफिनेटली. इसका ये भी ये सारा एक्चुअल सॉल्यूशन यूनिट रेट, यूनिट कॉस्ट है ना सीमेंट बैग का, हाँ हाँ वो 305 है, तो वहाँ पे वो भी मिस्टेक है. हाँ ठीक है ना आप कर लो उसको सही. हाँ हाँ. 305 है ना तो इधर क्या लिया है 300 लिया. हाँ तो 305 लेके करो वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है गुड दैट यू हैव पॉइंटेड. ये मैं क्या करता हूँ अभी आई विल नॉट मेक दिस चेंज एंड चेंज देयर. मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा, आप लोग करो उधर चेंज. मैं पूरा चेंज करने के बजाय मैं क्वेश्चन में चेंज कर लेता हूँ लेकिन दिस यू हैव टू डू इन द आंसर because it will be easy for me na to change in the question. Fine. यस सर. Anything else? No, sir. Okay. So I'll share a numeric a question on this. So you can just study it, solve it, and then tomorrow all should be present because दो बड़े न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, एक योग का करेंगे और एक इक्विपमेंट डाउन टाइम का करेंगे. So an extended session will be required. We'll see how it can be taken. Fine, then we'll end this meeting.
Yes, sir. Okay.